टॉपिक है ईएम वेव्स। ਜਿਹੜਾ ईएम वेव्स ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਅਜੇ ਇਸ ਦੇ ਦੇਖਿਓ 1865 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸਵੈਲ ਨੇ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਮੈਕਸਵੈਲ predicted the existence of electromagnetic waves, the existence of electromagnetic wave on the basis of Maxwell equations। फिर आ गया 1887 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਟਜ਼ ਨਾਮ ਦਾ ਸਾਇੰਟਿਸਟ। फिर हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट आया। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਵੇਵ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਫਿਰ 1894 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਸੀ ਬੋਸ ਆ ਗਿਆ। ਜੇਸੀ ਬੋਸ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਵੇਵਸ ਡਿਟਰਮਿਨ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੇਂਜ ਸੀ 5 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 25 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਤੱਕ। ਫਿਰ 1896 ਦੇ ਵਿੱਚ मैक्सवेल ने डिटरमिन की। मैक्सवेल डिटरमिन लॉन्ग रेंज ईएम वेव 1899 ਦੇ ਵਿੱਚ मैक्सवेल ने डिटरमिन्ड long range EM wave up to range कितनी सी 50 किलोमीटर तक जिन्हां दी रेंज सीगी ये डिटरमिन कीती। इलैक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की हुंदा है इलैक्ट्रिक ते मैग्नेटिक फील्ड ने जिहड़ी वो एक दूजे दे परपेंडिकुलर हुंदे एंड परपेंडिकुलर टू the direction of the propagation ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਹਰਟਜ਼ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਦੋ ਪਲੇਟਾਂ ਲਈਆਂ, ਦੋ ਮੈਟਲ ਦੇ ਸਫੀਅਰ ਲਈ। ਸਫੀਅਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਬੜੇ ਕਲੋਜ਼ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹਾਈ ਵੋਲਟੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾ, ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਡਿਟੈਕਟਰ ਲੱਗਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਪਰੇਸ਼ਨ ਸੀ ਬਿਟਵੀਨ ਦਾ ਸਫੀਅਰ ਉਹ ਬੜੀ ਥੋੜੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸਪਾਰਕ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਪਾਰਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਓਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਈ। ठीक है जी, आयोनाइजेशन होने के नाल ड्यू टू दी लोब है ये साडी बेसिकली साडे कोले की हुंदा है भी एक कैपेसिटर एलसी ऑसिलेशंस है। बेसिकली आ जिहड़ियां प्लेट्स ने कैपेसिटर के तौर पे आ एल इंडक्टर के तौर पे एक्ट करता सिस्टम और ये इक्वल टू बेसिकली एलसी ऑसिलेशंस है जिहदी जिहड़ी रेंज है 10 की पावर 7 हर्ट्ज तक हुंदी है। ड्यू टू दी हाई फ्रीक्वेंसी वेरिएशंस of the spark because of the electric and magnetic field both are oscillating charges, electromagnetic waves are radiated in the surrounding gap and these are detected by the detector coil which is placed parallel to these small metal spheres। this is a Hertz experiment। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਵੇਵਸ ਨੇ ਦੇ ਆਰ ਟ੍ਰਾਂਸਵਰਸ ਇਨ ਨੇਚਰ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਲਾਈਨ ਇੰਟੈਗਰਲ ਆਫ ਦੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿੰਨਾ ਫਲਕਸ ਐਂਟਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਨਾ ਹੀ ਫਲਕਸ ਲੀਵ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਫਲਕਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ। ਹੁਣ लाइन इंटेग्रल of vector E dot vector dl plus line integral of vector E dot vector dl, 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 line integral of vector E dot vector dl is equal to q by epsilon naught। लो जी एक आ गया डी ई एफ जी ए बी ई एफ ओ ए बी सी ओ सी डी जी ए सी जी एफ ACGF OBDE
तो चार्ज कोई है नहीं, क्यू इक्वल टू 0 है, तो 0 है तो सारा कुछ इक्वल टू 0 है। हुण मगर की रह गया DEFG प्लस OABC इक्वल टू 0, DEFG OABC दोनों एक दूसरे अपोजिट हो गए, AX डैश तो EX माइनस EX डैश दोनों एक दूसरे अपोजिट हो गए इनटू अपन टोटल सरफेस ले रहे हैं और DS लिखना होगा, EDS DS। इसका मतलब EX is equal to EX dash is equal to 0, therefore wave is not propagating along x-axis that is electric field is perpendicular to the direction of propagation. Similarly, we can prove magnetic field is perpendicular to direction of propagation. Therefore, electric field and magnetic field are perpendicular to each other and perpendicular to direction of propagation. Perpendicular to direction of propagation. Prove होया. Therefore, EM waves are transverse in nature. EM waves are transverse in nature. आगे चलने लगे हैं. Maxwell equations. हुण एक ही Maxwell equations. पहली इक्वेशन ए कहती है del dot B equal to 0. इसका मतलब इंडिविजुअल magnetic poles does not exist. इन्होंने ऐसे लिखा किताबों ने वेक्टर B डॉट वेक्टर DS इज इक्वल टू 0 ऐसे लिख दो। फिर तुमने ये भी देखा है कि E डॉट DS है जिहड़ा वो Q बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर है। तो हमने ये भी देखा है कि वेक्टर B डॉट वेक्टर DL इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम द I प्लस ID। ID होता है डिस्प्लेसमेंट करंट, ये हो गया एप्सिलॉन नॉट d phi E बाई dt। उस तो बाद वेक्टर E डॉट वेक्टर DL is equal to वेक्टर E डॉट वेक्टर DL is equal to माइनस ऑफ d phi B by dt, d phi by dt ये E होता है। तो पहली इक्वेशन मैक्सवेल दी ए बन गई, दूसरी इक्वेशन ए बन गई, तीसरी इक्वेशन ए बन गई, चौथी इक्वेशन ए बन गई। ये चार इक्वेशनां ने जिहड़ियां दीज आर कॉल्ड मैक्सवेल इक्वेशंस। आगे चलने लगे कि टर्म यूज कीती है डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट आपां देखिए ये की चीज है डिस्प्लेसमेंट करंट। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਤੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਨੇ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਦੀ ਇੱਕ ਪਲੇਟ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਪਲੇਟ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੈਟਰੀ ਲਗਾਈ ਤੇ ਚਾਰਜ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਸਰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਪਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪਲੇਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਫਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। अगर आप उस करंट होगा उस करंट को असं डिस्प्लेसमेंट करंट कहांगे। फार्मूला बेसिकली वही होएगा केड़ा dq बाई dt। क्यों किहदे बराबर हुंदा है cv दे बराबर हुंदा है, c किहदे बराबर हुंदा है एप्सिलॉन नॉट a बाई d दे बराबर हुंदा है इनटू v।
हुण v किहदे बराबर हुंदा है? ed दे बराबर हुंदा है। ed ओवर d, dd कैंसल। एप्सिलॉन नॉट किहदे बराबर हो गया? वेक्टर e डॉट वेक्टर a दे बराबर हो गया। a किहदे बराबर हो गया? d फाई e बाई dt दे बराबर हो गया। इहनूं की कहंदे आपां? डिस्प्लेसमेंट। तो साडे कोल जिहड़ा बन गया लाइन इंटैग्रल ऑफ वेक्टर b डॉट वेक्टर dl इज इक्वल टू म्यू नॉट ऑफ i प्लस एप्सिलॉन नॉट ऑफ d फाई e बाई dt। ये बन गया d फाई e बाई dt i प्लस एप्सिलॉन नॉट ऑफ d फाई e बाई dt। इन्हों कहने अगर देखो गल वही है, अगर आई तो तुसी हुण इत्थों करंट पास हो रहा है, ये कनेक्टेड नहीं तो आ वाला फार्मूला है। हुण अज तुसी इस प्लेट की गल करोगे आ जीरो है तो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी मीन आह ये जो करंट फ्लो हो रहा है वो बेसिकली डिस्प्लेसमेंट करंट। ऐसी बेसिक कांसेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट अगे चलने लगे। अगला टॉपिक है जनरलाइजेशन ऑफ मोमेंटम। तुमने पढ़िया ई जेड़ा हुंदा mc स्क्वायर दे बराबर हुंदा है ता E इज इक्वल टू mc इनटू c। mc किहदे बराबर हुंदा है? p दे बराबर हुंदा है। ता एनर्जी जेड़ी हुंदी है वो कितनी हुंदी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दी pc। हुण तुहानू प्रेशर कितना होगा? तो 1993 दे विच एक अमेरिका दा साइंटिस्ट सीगा निकोल एंड हल NCOLS निकोल्स एंड हल। उन्होंने विजिबल रेज दे विच जेड़ी हैगी है अदी प्रेशर देखिया वो आया 7 × 10⁻⁻6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इन्ना प्रेशर आया सीगा। ऊपर प्रेशर तो आ गया मतलब कि जे एरिया जेड़ा आ विजिबल रेजेस ते गिरियां आके और जे एरिया 1 मीटर स्क्वायर हुंदा तां फोर्स है जेड़ी वो 7 × 10⁻⁻6 न्यूटन सीगी। हुण क्यों हुंदा या नहीं हुंदा आपां ये देख रहे हैं। सानू पता है जेड़ा फोर्स है वो dp/dt मीन फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम ओवर चेंज इन मोमेंटम। हुण फोर्स अपॉन जेड़ा एरिया हुंदा है ये प्रेशर हुंदा है। फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम ओवर a इनटू डाल्टा t। डाल्टा t जेड़ा हैगा वो 1 सेकंड हुंदा है। एरिया जेड़ा हैगा वो 1 मीटर स्क्वायर हुंदा है। तो मोमेंटम जेड़ा हैगा वो किहदे बराबर बन गया? मोमेंटम बन गया। हुण देखो मोमेंटम लिखना कढना है। तुहानू पता एनर्जी h न्यू दे बराबर हुंदी है। ये pc आ गया तां मोमेंटम जेड़ा हो गया वो h न्यू बाय c हो गया। तो तुसी एरिया 1 मीटर स्क्वायर टाइम 1 सेकंड तो प्रेशर हो गया न्यू बाय c। प्रेशर कितना बन गया? न्यू बाय c। अगला टॉपिक है एनर्जी डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक वेव। एनर्जी होगी हाफ की होगी। हुण चार्ज बटा एरिया हुंदा सिग्मा, इलेक्ट्रिक फील्ड हुंदा सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा हुंदा चार्ज बटा एरिया इनटू एप्सिलॉन नॉट। Q इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट a e दे बराबर है। ऐसे पुट करता E इक्वल टू हाफ Q किहदे बराबर है? एप्सिलॉन नॉट a e दे बराबर है। V किहदे बराबर है? ed दे बराबर है। तो ये बन गया ये होगी एनर्जी। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कढनी है। वॉल्यूम किहदे बराबर हुंदा? AD दे। AD कट गया तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कितना बन गया? एनर्जी डेंसिटी। ये कितनी आ गई? हाफ एप्सिलॉन नॉट e दा स्क्वायर। उस तो बाद आंदा है अगर तुसी यही चीज को मैग्नेटिक फील्ड च कढना है, मैग्नेटिक फील्ड च कढनी है, ये कढी इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी। अगर तुसी मैग्नेटिक फील्ड च देखोगे तो वो होगी म्यू नॉट v दा स्क्वायर ओवर 2 म्यू नॉट। अगर तुसी नेट एनर्जी डेंसिटी देखनी है दोनों का सम होगी कितनी होगी? हाफ एप्सिलॉन नॉट e दा स्क्वायर प्लस d दा स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट। AC एनर्जी डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। चलने लगे रिलेशनशिप बिटवीन द एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड एक ही चीज है। तो हमने हुणे इक्वेशन पढ़ी है भी लाइन इंटीग्रल ऑफ वेक्टर E डॉट वेक्टर dl इज इक्वल टू माइनस ऑफ d फाई बाय dt। तुसी देखो इन्हां दे लिख लो आह ये बन गया इंटीग्रल ऑफ a तो b इंटीग्रल ऑफ b तो c इंटीग्रल ऑफ c तो d इंटीग्रल ऑफ d तो e। वेक्टर E डॉट वेक्टर dl प्लस वेक्टर E डॉट वेक्टर dl प्लस वेक्टर E डॉट वेक्टर dl प्लस वेक्टर E डॉट वेक्टर dl। A तो B
डी तो सी, ठीक है जी, आ जीरो बन गया, आ जीरो बन गया। ਇਹਦਾ मतलब EX1 L2 माइनस EX2 L1 E नॉट L, ये बन गया साइन ऑफ KX1 माइनस ओमेगा टी साइन ऑफ KX2 माइनस ओमेगा टी, ये चीज साडे कोले बन गई। हुण फाई ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਲਿੱਤਾ x ਨਾਲ, x ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ, x1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ x2 ਤੱਕ, ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ B0 of L2 साइन दा डी एक्स ऑफ साइन एक्स हुंदा cos x और डी एक्स ऑफ cos x हुंदा माइनस साइन x, ਇਹਦਾ साइन ਦਾ इंटीग्रल बन गया माइनस ऑफ cos ऑफ kx, ये बन जूगा माइनस ऑफ cos ऑफ kx टू माइनस ओमेगा टी प्लस cos ऑफ kx1 माइनस ओमेगा टी। के आ गया, के नीचे लिखता, ਇਹਦਾ डेरिवेटिव लिखता, फाई बी आ गया, डी फाई बी बाय डी टी इट इज इक्वल टू बी नॉट एल टू इंटू ओमेगा ओवर के, कॉस का हो गया माइनस ऑफ साइन के एक्स टू माइनस ओमेगा टी प्लस साइन ऑफ KX1 माइनस ओमेगा टी। आ देखो जब तुसी इस वाली इक्वेशन हो, एक नंबर इक्वेशन है, ये 2 नंबर है, दोनों को आपस च इक्वेट कर दोगे तो तुसी देखोगे आ वाला पोर्शन कट जाऊगा, थोड़े कोले रह गया E0 ऑफ L इज इक्वल टू B0 ऑफ L ओमेगा बटा के, एल एल कट गया, ओमेगा बटा के बन गया बी, रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टू मैग्नेटिक फील्ड ये बन गई वेलोसिटी, क्योंकि ओमेगा बटा के की हुंदा है v दे बराबर हुंदा है, ये आ गई वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अभी चलो लगे हुन सानू पता है डायग्राम वही है, बस निचले वाले पासे बनाई है, इंटीग्रल ऑफ a तो b वेक्टर b डॉट वेक्टर dl प्लस b तो c वेक्टर b डॉट वेक्टर dl c तो d वेक्टर b डॉट वेक्टर dl प्लस d तो a वेक्टर b डॉट वेक्टर dl। आ गया a तो b b तो c खत्म, c तो d d तो a आ गया। हुण B0 ऑफ L माइनस ऑफ साइन KX1 माइनस प्लस साइन ऑफ KX2 ओमेगा टी, ये वैल्यू पुट करती साडे कोले ਇਹਦੀ वैल्यू आ गई इस तरह ही। हुण ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ वैल्यू ਕੱਢਣੀ है, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ फाई ਹੈਗਾ, जब ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਇੰਟੀਗਰਲ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਇੰਟੀਗਰਲ ਕਰੋਗੇ x1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ x2 ਤੱਕ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਜੂਗੀ E0 L2 साइन ऑफ kx माइनस ओमेगा टी dx फ्रॉम x1 to x2, ये बन जाएगा माइनस ऑफ cos ऑफ kx2 माइनस ओमेगा टी प्लस cos ऑफ kx1 माइनस ओमेगा टी, ये फाई आ गया। हुण तुसीं इहदा डेरिवेटिव कर दो विद रिस्पेक्ट टू t, आ k नाल डिवाइड करता, हुण बन गया E0 L2 इनटू ओमेगा ओवर k, cos का इंटीग्रल हो गया माइनस ऑफ साइन kx माइनस ओमेगा टी, cos का इंटीग्रल हो गया साइन kx माइनस ओमेगा टी। लो जी आ चलो आ वैल्यू पुट की, पहला अपर लिमिट पुट की, फिर लोअर, एक kx1 एक kx2 है। तुसी देखो ध्यान नाल आ दोनों चीज़ां आपस दे विच एक दूजे नाल कट जाणगी। आ जी चीज है हमने पढ़ी है म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट के बराबर है, इन्हों मल्टीप्लाई कर लो, म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट ना मल्टीप्लाई करोगे इत्थे म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट आ जाऊगा, जो आ गया तुसीं इहनूं लिखो जरा, हुण ये बन गया दोने कंपेयर करके म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट ई नॉट L2 इंटू ओमेगा ओवर के इज इक्वल टू B नॉट L2 कैंसिल, ओमेगा अपॉन के की बन गया वेलोसिटी, ए की बन गया वेलोसिटी, आ भी बन गई c,
के बटा ओमेगा, के बटा ओमेगा म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। लो जी ओमेगा अपॉन के हुंदा सी दे बराबर, ये हो गया सी, ई नॉट अपॉन वी नॉट हो गया सी, ओमेगा अपॉन के भी बन गया सी, आ भी सी है तो बन जाएगा सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय म्यू नॉट इनटू एप्सिलॉन नॉट। सी कितना बन गया 1 बटा स्क्वायर रूट ऑफ म्यू नॉट इनटू एप्सिलॉन नॉट। जब तुम इन्हां दी वैल्यू पुट करोगे एक मतलब कि 4 पाई इनटू 10 दी पावर -7 टेस्ला मीटर स्क्वायर पर एम्पीयर और एप्सिलॉन नॉट 8.85 इनटू 10 दी पावर -12 कूलम स्क्वायर बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर तो बन जाएगा 3 इनटू 10 दी पावर 8 मीटर पर सेकंड। यानी कि वेव की जी वेलोसिटी हैगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इन्नी होंगी है और जी और रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक टू मैग्नेटिक फील्ड है जी वो भी असीं देख ली है और आप ये भी देखिया कि ये ट्रांसवर्स है, आप ये भी देखिया कि इलेक्ट्रिक ते मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर है एंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन ऑफ द वेव। तो ये सी साडा ये छोटा जिहा चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के उत्ते। अगर तुसीं इन्हां नूं वैसे उन्हें ड्रा करके देखना चाहोगे तो ये वेव इस तरह ड्रा होंगी। इलेक्ट्रिक ते मैग्नेटिक फील्ड है जिहड़ी एक दूजे दे परपेंडिकुलर है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होवे तो इलेक्ट्रिक ते मैग्नेटिक फील्ड एक दूजे दे परपेंडिकुलर है एंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन ऑफ द वेव्स। ए जी आस्कुर साडा 3 डायमेंशनल सिस्टम है एक्स वाई जेड। ठीक ये अपना टॉपिक सीगा और एक गल आ याद रखियो कि इलेक्ट्रिक फील्ड है E इक्वल टू E नॉट ऑफ sin kx माइनस ओमेगा t हुंदा है और जेड़ा मैग्नेटिक फील्ड है B इक्वल टू B नॉट ऑफ sin kx माइनस ओमेगा t। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਸਪੈਕਟਰਮ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਮਾ ਰੇਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਰੇਂਜ ਲੈਸ ਦੈਨ 10 ਦੀ ਪਾਵਰ -3 ਨੈਨੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਐਕਸ ਰੇਜ਼ 10 ਦੀ -3 ਨੈਨੋਮੀਟਰ ਤੋਂ 1 ਨੈਨੋਮੀਟਰ, यूवी 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 400 नैनोमीटर तक, विजिबल 400 तो 700, IR 700 तो 1 मिलीमीटर और माइक्रोवेव 1 तो लेके 3 मीटर तक, रेडियो वेव ग्रेटर देन 3 मीटर तक। फिर गामा रेज ने जड़ियां दे आर फॉर्म्ड बाय द रेडियोएक्टिव डिके ऑफ द अनस्टेबल न्यूक्लियाई। एक्स रेज व्हेन ए फील्ड मूविंग इलेक्ट्रॉन hits the very heavy metal like copper। UV rays के बनती हैं by Lampard और other high temperature hot bodies just like sun। फिर उस तो बाद visible rays due to atomic excitation of electron। IR rays इन्हां दी जेहड़ी हैगियां due to heavy atomic excitation of electrons। Microwave by special vacuum tubes ने, ठीक है, इन्हां दा नाम हैगा क्रिस्टॉल बैलम जिस दे थ्रू ये बनदियां ने। रेडियो वेव्स these are formed by oscillations। उस तो बाद they are used to study the structure of the crystal यानी कि gamma rays, और they are used in the pipelines, they are used in the field of medicine to destroy the cancer cells, can cause genetic disorder in small time। X-rays when आप दस्ता भी किवें बनदी है by the free moving electron when hits the heavy metal just like copper to find out use any fracture in the bone, also used to study the surface of the crystal, can treat certain type of cancer, it can destroy the living tissues of the if they are overexposed।
ਅਲਟਰਾਵਾਇਲਟ ਰੇਜ਼ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨੂੰ ਕਿਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਟਰ ਪਿਊਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਦੀ ਸਕੈਨਿੰਗ ਚ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਾਜ਼ ਟੈਨਿੰਗ ਆਫ ਸਕਿਨ ਅਬਜ਼ੌਰਬਡ ਬਾਈ ਦੀ ਓਜ਼ੋਨ ਯੂਜ਼ਡ ਇਨ ਸਰਜਰੀ ਮੈਥਡ ਜਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਲੇਸਿਕ ਆਈ ਸਰਜਰੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਹੈ ਕਲੋਰੋਫਲੋਰੋਕਾਰਬਨਸ ਫੈਰੋਨਸ ਆਰ ਅਵੋਇਡਡ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀ ਦੀ ਆਬਜੈਕਟਸ ਅਸੀਂ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਰੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਟ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਡ ਓਨਲੀ part of the spectrum visible by naked eye फिर IR rays ये भी एक atomic excitation of electrons ਦੇ ਨਾਲ form ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ in night vision cameras to dehydrate the fruits in TV remotes also called heat waves readily absorbed by the water molecules. This is the major reason for the global warming as it is trapped by the carbon dioxide and ammonia etc. Microwave by special vacuum chamber tubes for communication through unguided media in microwave oven. Its reasonable frequency is reduced to match with the frequency of the molecules so that the water molecules so that the energy from the wave can transfer easily to the molecule to rise the temperature. फिर radio waves they are used in radio and TV communication satellite and in GRPS systems. क्या है क्या red monster in village is an ultimate example of ghost. ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ G ਦਾ ਮਤਲਬ ਗਾਮਾ ਰੇਸ ਇੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਿਆ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੇ गामा रेस एक्स का मतलब एक्स रेस ये पढ़िया आपने यू का मतलब अल्ट्रावायलेट वी का मतलब विजिबल फिर आपने आ भी देखिया रेडियो वेव्स एम का मतलब आप देखिया माइक्रोवेव्स रेड मॉन्स्टर इन विलेज इज एन अल्टीमेट एग्जांपल ऑफ गोस्ट याद रखने का तरीका ही है आई आप भी देखिए इंफ्रारेड ठीक है जी ਇਹ ਸੀਗਾ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹਿ ਗਈ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਪੋਰਸ਼ਨ ਪੜਿਆ ਹੈ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਇਹਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜੀ ਰੇਂਜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ 400 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 700 ਨੈਨੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 500 550 600 650 ਤੇ 700 देखो जी 400 ਤੇ 450 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੀ ਰੇਂਜ ਹੈ ਫਿਰ 450 ਤੋਂ 500 500 ਤੋਂ 550 550 ਤੋਂ 600 600 ਤੋਂ 650 650 ਤੋਂ 700 ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਗਿਆ ਵਾਇਲਟ ਫਿਰ ਆਊਗਾ ਬਲੂ ਫਿਰ ਆਊਗਾ ਗ੍ਰੀਨ ਫਿਰ ਆਊਗਾ ਯੈਲੋ ਫਿਰ ਆਊਗਾ ਔਰੇਂਜ ਫਿਰ ਆਊਗਾ ਰੈੱਡ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਗੋ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਤੇ ਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿੱਚੇ ਦੇ ਲਾਈ ਕਰਦਾ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰੇਂਜ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਇਹ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਸਪੈਕਟਰਮ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ